Welcome to Kashmir's Real Estate, first real estate podcast, powered you by Kashmiri Realtor Productions. We are here today with the esteemed guest, Mr. Zahab, Mr. CA Zahab, who is into CA and is handling my real estate portfolio. And he handles Kashmiri Realtor as an account. So we will be talking about why we need a CA in day-to-day life and into real estate as well. In Kashmir, most people don't invest in property, they believe in it. But belief doesn't always build wealth. Numbers do. Today, we are bringing that missing perspective. I'm joined by CA Zahab Ashraf, someone who doesn't just see property as a land or building, but as a financial decision backed by logic, taxation, and structure. And what makes this even more special, we both come from a BNI community, a network built on givers gain. So this conversation is not about selling, it's about educating. I really welcome you for this. Thank you. So we will be discussing about why we need a CA into real estate nowadays. So over to you, give us an idea who Zahab is, what your firm is all about, and what you do. I am basically a chartered accountant. I have 3 years of post-qualification experience. I am a first attempt qualifier. So, अगर मैं अपनी firm की बात करूं, my elder brother and my elder sister, they both are CAs as well. Oh wow! Yes, we have started our practice. They have started this firm back in 2018, and I joined them in 2023. And since then, we are all working as partners in same firm. Okay. So that's all about our firm. And when I say Zahab Saab, why CA? Because मैंने बहुत बार सुना है कि CA के एग्जाम बहुत टफ होता है. मैंने भी कोशिश की थी कि मैं भी एक बार CA बनूं. मेरे को बहुत एम्स थी जिंदगी में, लॉयर बनना, डॉक्टर बनना, CA बनना, and CA was one of them. So do you think being a CA is a challenge than other professions? Yes, definitely. इसके जो basically exam setup है, that is altogether different from the rest of the exams. Even if आप कोई भी exam लेते हैं, उसमें आपका semester wise रहता है. Like even if आपके 1-2 papers नहीं भी होते हैं, then you continue to the next semester. यहाँ से आपके पीछे से वो backlogs आते हैं. इसमें altogether चीजें काफी different होती है. As long as आपका पहला ग्रुप आपका क्लियर नहीं होता है, तब उसके बाद ही आप दूसरे ग्रुप में चले जा सकते हो. Okay. Great. So Zahab Saab, for the day, I have invited you for this podcast to understand why CA is needed in real estate transactions in Kashmir. So when I say in Kashmir, being in the ground reality, I see a lot of challenges in terms of a CA. I see people investing in real estate. I see people buying and selling, but they don't consider or consult a CA. So do you think there is a gap in the market right now in Kashmir market? Because when I was out, there were people who used to have a CA, a lawyer with them, when they used to come to transact a real estate transaction because it involves money. So do you think a CA is needed in those type of meetings? Definitely. Where there is money, there is CA. Okay. As long as आप अपने CA को इन्वॉल्व नहीं करते हो आपके किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, Okay. कहीं ना कहीं आप काफी चीजें लैग कर जाते हो. Even in real estate, if we consider that I earn a lot of profit, but कहीं ना कहीं हम पोस्ट चीजें स्किप कर जाते हैं, जिसमें से मेनली कैपिटल गेन्स रह जाते हैं हमारे. लाइक आपको आइडिया होगा टैक्सेस का, कैपिटल गेन टैक्सेस, लाइक वो टैक्सेस जो आप अपने प्रॉपर्टी बेचने पे देते हो. Okay. वो चीजें मोस्ट ऑफ द सेलर्स इग्नोर कर देते हैं. ठीक. और वंस और इवन जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, देन हमें वी आर सपोज टू डिडक्ट 1% TDS. That buyer is supposed to deduct 1% TDS. Okay. So in this, we will surely get into the depth of this taxation because I have segmented this podcast into various segments. So taxation is one of that. So Zahab Saab, मेरा पहला सवाल ऐसा रहेगा जो मेरा पहला segment में मैंने रखा है, which is very important, I think. Why Kashmiris invest only in land, and why do they think that land is a safe investment? I believe in Kashmir, land is more or less connected with security and identity. Okay. For generations, people have seen that land really loses value completely. So there's more or less a psychological comfort attached to it. तो लोगों का इधर काफी वो कहना है कि जमीन कभी धोखा नहीं देगी. सही. So this is something people usually feel that this is one of the safest investments. So when I talk about now people buying lands as an emotional stability, do you think that people don't consider ROIs before that? Because when I say in real estate, people invest into a land
or into an apartment or into anything into real estate, and they look for ROI, or they do calculate ROI, and then they invest that particular amount. So do you think in Kashmir it's missing? Yes, the answer is simple. The people here focus mainly on ownership and not on performance. Their thinking usually stops once they own the plot. उसके बाद वो ज़्यादा सोचते ही नहीं है. Okay. Like how much this plot is going to give me. Very आपने भी काफी कम लोग ऐसे देखे होंगे. Once they own a plot, उसके बाद वो बोलते हैं यार ये प्लॉट मेरे को देगा कितना. सही. ओके दैट्स फाइन कि आपका 10 साल 15 साल के बाद रिटर्न्स आ रहे हैं. Okay. आपकी इसमें अप्रिसिएशन हो रही है. Right. बट 15 साल तक क्या? Okay. There is zero liquidity Okay. in this. Cash flow zero है. Okay. As long as आप ये बेचें ना. So there is basically I feel that lack of financial literacy. And nothing else. When I say ROI, it's a term, right? ROI, we generally say it's a return on investment. Yes. And जो मैंने पढ़ा है, जितना मुझे पता है, because I am a half CA, a half lawyer, a half businessman, and then I have become a realtor. When I say, I tell people ROI is on a yearly basis. So what you are getting onto it on a yearly basis that you can take out. Let's say हम कोई property ले रहे हैं, the rental income I am getting onto this annually is an ROI for this. Yes, is that perfect. right? Yes, perfect. Okay, so when I say ROI, it's a yearly thing, not a long-term thing. It's basically ROI is concerned with how much your investment is giving you returns. Okay. How much returns you are getting on the initial investment that you have made. It's not only connected with land or property or anything that I am investing. Be it in my business, be it in anywhere, be it in SIP, be it in FDs or elsewhere. Okay, so Zahab Saab, as we said that ROI, we discussed about the emotional way of it. So I want to just understand, is taking a decision emotionally helping or it's hurting people in Kashmir? See, emotion gives satisfaction. Okay. But financial, if we consider financial perspective, कहीं ना कहीं वहां से ये एट द एंड एक पुअर डिसीजन मेकिंग ही रहती है हमारी. तो व्हाट यूजुअली हैपेंस इन कश्मीर दैट पीपल बाय बेस्ड आउट ऑन फियर और आउट ऑफ सोशल प्रेशर. दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए. Okay. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस आफ्टर सर्टेन इयर्स दे फील लाइक उन्हें उस जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे जो आज ब्लॉक कैपिटल बन के रह गया है. Wow. तो कहीं ना कहीं वो कागजों में करोड़पति होता है, लेकिन वो कैश फ्लो जीरो रहता है. Okay. That's something जो कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए. Question will be like this, जैसे आपने बोला कि blocked money होता है. So मेरा एक सवाल है, if buying 3 plots is all about wealth or it's a blocked money? Not necessarily. Wealth is not only what you own, but what actually your assets produce. कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि wealth में अगर हम देखें, it's not only for example आपके vacant plots है, but what are those plots in giving you returns? Are those giving you generating incomes for you? If not, then कहीं ना कहीं वो तो आपके बस वेस्ट ही हो रहा है वो सही बात. फंड्स. तो मेरा सवाल ऐसा एक और रहेगा जो कि मेरा नया सेगमेंट है, which is real estate versus real estate returns. So when I say, अगर हम देखेंगे कश्मीर में किसी के पास 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है रियल एस्टेट में, where he should invest in real estate? Like what type of asset he should invest in? Is it a commercial asset, or it should be a residential asset, or it should be a plot, it should be a shop, or it should be somewhere an apartment? How It all depends on one's personal goals. Okay. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके रेंटल से ही उतने बेनिफिट्स आ रहे हैं प्लस लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन भी हो रही है, देन इट्स बेटर कि वो उसी में रेंटल में चला जाए. बट इवन इफ ही फील्स कि नहीं जी रेंटल में उसमें कहीं ना कहीं मेरे को सिरदर्दी उठ रही है, लाइक जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल्स को हमें इधर लग रहा है वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं लगती हमें उसमें. हमें लग रहा है यार अगर हमने किसी को कोई चीज़ रेंट आउट की है तो शायद इसने मुझे खा ही लिया. Okay. तो उस केस में लोग काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं कि हम लैंड में इन्वेस्ट करें. दैट्स समथिंग जो काफ़ी लोग भी इधर कर रहे हैं. Okay, so as you said, 50 lakhs can be invested in real estate, but as I see, जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, it should be a parked money, right? So, but to a businessman, it is never a parked money. वो बोलते हैं चलो मेरे clients है जैसे उनका apparel का business है, उनका किसी चीज़ का business है, they are into hotel business, okay? So they will prefer to invest in their own businesses than rather going diversifies. So my question will be, is diversifying important for a businessman or somebody who is a salary guy or somebody? Why should they invest in real estate or SIP? So can you tell me the differences between all these things? See, SIPs basically work on compounding. So
इट हैज़ अ वेरी स्टीडी एंड डिसिप्लिन ग्रोथ ओवर टाइम. Okay. लाइक आपको पहले ही पता होता है कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद मेरे पास ये इतने रिटर्न्स आ रहे हैं, और मंथली भी आप कुछ ले रहे होते हो. बट इफ आई कंसिडर बिजनेस, इट हैज़ अ वेरी एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स बट ऑल्सो कम्स विद अ ग्रेट रिस्क. ठीक. और अगर मैं वहीं लैंड की बात करूं, इट जस्ट सिट्स आइडल एंड वी वेट फॉर एप्रिसिएशन. कहीं ना कहीं मुझे पता होता है मैंने अपने फंड्स यहाँ पार्क किए हुए हैं, और मैं 5 साल 6 साल 10 साल के बाद वेट कर रहा हूँ कि कब इसकी वैल्यू बढ़ेगी. सो ऑल ऑफ थ्री आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सारे फंड्स अपने एक ही जगह पे ब्लॉक नहीं करने हैं. Okay. If land doesn't work out, my business will. If business doesn't work out, SIPs will. This ultimately how things are going to be. So my third segment will be the truth people should know. Okay. And this segment has the first question like, what are the hidden costs for owning a real estate or owning a land? What are the hidden costs attached to it? So can you give an idea about that? One of the major hidden cost is the opportunity cost. Opportunity cost मैं ऐसे कहूँगा कि अगर मैं आज लैंड नहीं इन्वेस्ट कर रहा होता, ये फंड्स मैं कहाँ पर अभी पार्क कर रहा होता, एंड व्हाट दोज फंड्स वुड हैव बीन जनरेटेड, हाउ मच इनकम दोज फंड्स वुड हैव बीन जनरेट फॉर मी. अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि अगर मैंने आज लैंड में इन्वेस्ट नहीं किया होता, मे बी मैंने बैंक में FD बना ली होती. तो कहीं उतने मैं साल के बाद एटलीस्ट मेरे को इतना देखना है कि मेरी लैंड की इतनी एप्रिसिएशन है कि कम से कम मेरी FD की इनकम से ज्यादा हो. अगर मैंने FD बना ली होती उतने पैसों की, तो उससे ज्यादा हो. दैट्स समथिंग कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा देखनी है. अगर मैं उसके बगैर देखूं, लाइक वंस एनीवन जो भी यहाँ पर लैंड खरीदता है, तो वो कहीं काफी चीजें इसमें इग्नोर कर लेता है. लाइक उसको पहले आइडिया ही नहीं होता स्टैम्प ड्यूटी का. ठीक. वो लीगल कॉस्ट उसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं, वो कल को ये लैंड मेरे लिए है सूटेबल कि मैं इस पे घर बना सकूं, उस टाइम के कॉस्ट जो बाकी चीजें आएंगी वो इग्नोर कर लेते हैं. बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कॉस्ट जो आपको देखना चाहिए वो है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि अगर मैं ये फंड्स लैंड में ना पा किसी और जगह डाल दूं, बीट किसी ऐसी प्रॉपर्टी में जो मुझे वहां से रेंटल दे रही हो, यहाँ से मेरे पास एप्रिसिएशन भी आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद मेरे को पता है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी आज 30 लाख रुपए में खरीदी है, से कोई फ्लैट में नहीं खरीदा 30 लाख रुपए में, मुझे पता आज से 10 साल बाद इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे 50 लाख से 50 लाख रुपए आएंगे. बट इन 10 साल में मैंने इसमें कमाया भी तो रेंटल से. और वो काफी वो चीजें हैं जो काफी हमें कंसिडर करनी है. So as you said, there are hidden costs in owning a land. So let me take an example. जैसे आप मेरे CA हो, you handle my private limited company, you handle my directorships, okay, and you handle my personal incomes as well, and you take care of all these things. अगर मेरा जैसा बंदा एक कश्मीर से जो एक कंपनी ओन करता है, अब इन्वेस्ट करना चाहता है, let's say I'm not into real estate, okay, मैं कोई बिजनेस करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, कोई फर्म चलाता हूँ, कोई प्रोडक्शन कंपनी चलाता हूँ, एंड इसी बात में मैंने अब अपने फंड्स कुछ निकाले जो मैं चाहता हूँ, या कंपनी के फंड्स मुझे कुछ आ रहे हैं, कंपनी से बोनस आ रहे हैं, सैलरीज आ रहे हैं, whatever, I will take it from there which is coming to me. Can I invest that into real estate and can get some nominal funds? मेरा कोई बेनिफिट हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा as a CA, because I think CAs will take these decisions फाइनेंशियली. तो मेरे लिए तो इमोशनल, हाँ मैं ज़मीन लेना चाहता हूँ, मैं मकान में, बट मैं इन्वेस्टमेंट लेना चाहता हूँ. आई वांट टू डाइवर्सिफाई सम फंड्स फ्रॉम माय कंपनी. मैं वापस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये लैंड में इन्वेस्ट करूँ. सो हाउ विल यू टेक इट फ्रॉम देयर? अगर मैं आपकी बात करूं, लाइक इफ यू आर माई क्लाइंट, तो आप कल को एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ जी आपको फलाने जगह पे जमीन लेनी है, से इट फॉर 50 लाख रुपीस, तो यहाँ से आपके पास आइडल फंड जो पड़े दैट इज ओनली 30 लाख, तो 20 लाख रुपीस आपको लोन निकालना है. तो से आपके इस लोन में साल का आपका 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया हुआ है, और आपकी इनकम थी इससे पहले 9.5 लाख रुपए की. तो आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से 9.5 लाख रुपए आप नहीं मानी जाएगी, बल्कि 9.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए लेस किया जाएगा. तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक. अगेन कल को अगर आप ये लैंड बेचते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा टैक्स ही पे करना पड़ेगा. कैपिटल गेन देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड 54, उसमें काफी रिबेट्स मिलती है. ठीक. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही ले रहे हो, तो उसमें भी उस केस में भी आपको कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता ही नहीं है. बट उसमें ये है जरूरी कि आपको रिटर्न फाइलिंग अपनी जरूरी टाइम पे करनी है. अंडरस्टूड. सो व्हेन आई से, do you make decisions with the business owners? Yes, definitely I do make decisions, because so they ask you to make the decision as a financial decisions? They don't ask me only, they basically हमारे बगैर तो वो कभी कोई डिसीजन लेते ही नहीं है इस चीज का. बिकॉज सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पिछले 2 या 3 साल में इसके आइडल फंड्स कितने रहे. कल को ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर मेरा कोई क्लाइंट या कोई भी उठ के कोई किसी जगह लैंड ले ले 1 करोड़ रुपए की, यहाँ से उसको पता ही नहीं उसका वर्किंग कैपिटल कहाँ पर है. उसके फंड्स ही ब्लॉक हो जाए जो उसको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरत है. अंडरस्टूड. अगर
50 लाख रुपीस का कोई लोन ले अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, दैट मीन उसके पास उतने सफिशिएंट फंड्स होनी चाहिए कि ये 50 लाख निकाल के भी वो अपना उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल सफर नहीं होना चाहिए. Understood. So when I tell you, when I was in Dubai or in Bangalore, we used to go and meet CAs over there, the CA offices. वहाँ बड़े बड़े CA offices रहते हैं, माशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारे भी रहेंगे यहाँ पे. So हम उन CA office में एक मीटिंग निकालते थे जो उनका मेन CA या जो ओनर होता था, and we used to ask them, sir, what is the portfolio that you are handling? Because in real estate, it's not like buying chana. मूली गाजर तो नहीं है रियल एस्टेट. इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग करोर्स ऑफ फंड्स, एंड व्हेन दे आर ऑलरेडी हैविंग अ डिसीजन मेकर लाइक अ सीए हु इज टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, तो हम उसको जाके हम उसको बोलते थे, सर आप हमारे साथ कोलैब करो, यू कोलैब विद अस, आई विल टेल यू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट आर इन द मार्केट. सो हम क्लाइंट को पिच नहीं करते थे, हम मेनली सीएस को पिच करते थे. सीएस यूज्ड टू गेट एन आइडिया, ओके, नो डाउट दे यूज्ड टू हैव सम रेफरल अमाउंट्स एज वेल, बट दे यूज्ड टू गेट एन आइडिया कि इस बंदे के साथ मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं. सो इट वाज नॉट द क्लाइंट्स हु वर इन्वेस्टिंग विद अस, इट वाज द सीएस हु वर इन्वेस्टिंग विद अस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर अदर पीपल लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते थे जिनके पास पैसा होता है, जो पैसा लगाते हैं क्लाइंट्स का. सो आई थिंक दैट इज मिसिंग राइट नाउ इन कश्मीर, बिकॉज व्हेन आई मीट सम सीएस यहाँ पे, तो मैं उनको बोलता हूँ, सर डू यू हैव अ पोर्टफोलियो एंड हाउ डू यू वर्क, तो वो बोलते थे, जनाब मैं तो बोलूंगा किसी क्लाइंट को जहाँ यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, बट आई डोंट थिंक दे विल गो विद दैट. सो आई यूज्ड टू से लाइक, सर क्यों? बोलते थे, सर उनको लगेगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है. मतलब सर अगर आपके ही हवाले उन्हें पैसा किया, जैसे मैंने कश्मीर रेटर सारे आपके के नाम पे रखी है, इट्स ऑन माई नेम बट इट्स हैंडल्ड बाय यू, राइट? सो ऐसे ही जब आप बोलोगे मुझे नहीं ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है, मेरे को, for me, I will never think for twice. I will think, नहीं मेरे ज़ुहैब साहब ने बोला है, ज़ुहैब साहब owns my money, he knows how to diversify my money, so I will give it to him and then let him prefer. So I think that is missing in Kashmir. Yes, definitely. वो फैक्टर कश्मीर में भी मिसिंग है. बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं आज से फॉर एग्जाम्पल अभी आपके दिमाग में ये चीजें चल रही है कि नहीं, अगर मेरा सीए ऐसा कह रहा है तो मैं तो वही करूंगा. Right. और लाइकवाइज कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो जाती है कि मेरा भी क्लाइंट कभी भी ये डिसीजन नहीं लेता है सोली. वो जब भी उसको फाइनलाइज करनी होती है सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं मेरे से पहले एक बार ही पूछ लेता है. Understood. कि मैं जो है साहब ऐसा करूं या नहीं करूं. Understood. मैं ये मुझे बोल रहा है कि इतने की डील हो रही है, मैं इज इट वाइज इनफ फॉर मी कि मैं ये चीज ले लूं? Okay. अगर नहीं है तो आप मुझे बोल दो. अगर आप बोल रहे हो कि मैं लोन ले लूं ताकि मेरा वर्किंग कैपिटल सफर ना हो, इज इट समथिंग कि मैं करूं या नहीं करूं? क्या कल को आपको लग रही है कि इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी है उतनी कि मेरे को खरीदना चाहिए? मैं रिसेंटली आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे एक क्लाइंट की, ही वाज अबाउट टू हैव बाय अ प्रॉपर्टी वर्थ 6 करोड़. Okay. तो उसके लिए अब वो देख रहा था, उसको कुछ 3-3.5 करोड़ रुपए का लोन निकालना पड़ रहा. Okay. तो बट जब वो मेरे पास आया तो मैंने बोला यार तुम्हारा तो ऐसे ऐसे वर्किंग साइकिल सारा ही हिल जाएगा, तो मैं ऐसा करो, तो मैं लोन तुम कम ले लो. ये यहाँ से कह रहा, सर मैं तो सोच रहा हूँ मैं ज्यादा ही ले लूँ. ठीक, तो उसके बाद मैंने उसको EMIs कैलकुलेट कराए. तो मैं उसको बोला देखो तुम्हारे एग्जिस्टिंग इतने EMIs है, इसके बाद तुम्हारे ऐसे EMIs आ जाएंगे. तो वो इवन उसने ऑलमोस्ट 30-40% पेमेंट कर ली थी उस बंदे को. तो उसने उसके बाद जब उसको फिगर आउट हो गया, उसने बोला मेरे से असली गलती होगी, मैं आपको टाइम पे आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया. तो उसके इवन आफ्टर पेइंग हिम 40%, उसने उसको बोला भाई कुछ करो तो मेरे को आप पैसे ही वापस दे दो. Okay. दैट इज समथिंग कि वो हमारे बगैर तो वो ये डिसीजंस कभी लेंगे ही नहीं, इवन आज की डेट में भी. Understood. So let me get back to the topic. That was the segment telling the truth about the people of Kashmir. So do you think liquidity is dangerous or it can become dangerous sometimes? अगर हम लैंड की बात करें, देयर इज नो लिक्विडिटी इन लैंड. लैंड इज द लीस्ट लिक्विड एसेट दैट यू हैव. तो कहीं ना कहीं आपके पास लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके एक्सपेंसेस एप्रिसिएशन नहीं पे करती है. इट इज द लिक्विडिटी दैट इज पेइंग यू, that is managing your expenses. So it is equally important कि आपकी कैश फ्लोज भी आते रहे और एप्रिसिएशन भी होता रहे. Understood. नॉट ओनली एप्रिसिएशन. ठीक है आप कागज पे करोड़पति हो, बट इन रियलिटी में क्या? Right. आपके पास ठीक है 15 साल के बाद आपके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जो खर्चे आपको आज बियर करने हैं उसके लिए पैसा आप कहाँ से ला रहे हो? Understood. So as we started with a term called opportunity cost. Yes. Okay. So can you give us an idea in simple terms to the people to get them an idea कि ये होता क्या है? What is an opportunity? Simple. I अगर मेरे think you पास explained it well, but I want you to take 2 minutes and just give an idea. इट्स वेरी सिंपल. लाइक मैं अगर कोई चीज खरीद रहा हूं तो मैं उस पैसों में फॉरगो क्या कर रहा हूं. लाइक इफ आई एम इन्वेस्ट, अगर हम आज रियल एस्टेट की बात करें, अगर मैं 10 लाख रुपए किसी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं फॉरगो क्या कर रहा हूं? मैं ये 10 लाख रुपए किसी और जगह भी डाल सकता था. से मैं अपने बिजनेस में डाल लेता तो अप्रॉक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साल का मेरा 20% का रिटर्न होता. ठीक,
तो से लाइकवाइज मैं ये पैसे सिप में लगा देता, एफडीज में लगा देता. दैट मीन्स आफ्टर 5 years आई नीड टू सी, अगर मैंने 5 साल के बाद लैंड में 10 लाख की लैंड में मैंने 20 लाख रुपए कमाए हैं, बट व्हाट इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड दोज मनी इन एफडीज, इन एसआईपीज और इन बिजनेस. उस टाइम पे मेरे रिटर्न ज्यादा थे या नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एफडीज में इन्वेस्ट किया होता, आज की डेट में मेरे पास जो रिटर्न आई होती वो से 6 लाख रुपीज आई ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लैंड में मैंने कितना कमाया, ऊपर से 10 लाख. राइट. दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं 4 लाख रुपए असली इन एक्चुअल मैंने 4 लाख रुपए का ही प्रॉफिट लिया, क्योंकि 6 लाख रुपए तो मेरा एफडीज में भी बन रहा था प्रॉफिट. Understood. That is what basically opportunity cost is. Okay. Okay. So my question will be, if we are talking about the 30 lakhs, okay, हम 30 लाख रुपया कहीं जमीन में लगाते हैं, is it idle there for 10 years? Is there a loss or it will be a benefit to us? Because when I say in real estate, we talk about buy and wait. So how will you contradict with this point? If that money stayed in land for significantly a longer time, say 10 years, while other investment opportunities for that period doubled or tripled, then that's definitely a loss. Okay. Loss जरूरी नहीं है कि कभी नुकसान ही हो, एक जगह रुकना भी लॉस ही है. Okay. So as we said, as we talk about something as in liquidity, I want to know what is liquidity and can it be dangerous sometimes? Yes, liquidity is basically how easily you can convert your assets to cash. Land is probably the least liquid assets. तो क्योंकि जरूरत के टाइम आप जमीन को कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं. एज अगेंस्ट एफडीज, एज अगेंस्ट एसआईपीज आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, लेकिन लैंड इज द वेरी लिक्विड एसेट, वेरी लीस्ट लिक्विड एसेट. सॉरी. Okay. When I talk about the segment 4 of this particular podcast, which is very important, I think, for people to know, it's all about tax structure. So we will start with what are the taxes that a buyer ignores mostly? See, buyer usually ignores the stamp duty, registration taxes, and Okay. these ultimately affect his gross profit or net profit. But that is something जो हर किसी बायर को देखना जरूरी है कि यार अगर ठीक है मैं ये जमीन इतने में 1 करोड़ में ले रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितनी हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कितने हैं, वो कुछ चीजें हैं जो हर किसी बायर को जरूरी देखनी है. Okay. And when I say the taxes, in taxes, why do sellers get shocked when they hear about capital gains? Because they consider the profits on the property without considering the taxes. Say it for example, अगर उनका 1 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हो जाता है तो वो फैक्टर कंसिडर ही नहीं करते कि इसमें तो 20% गवर्नमेंट को जाना है. Okay. बट फिर जब अपने सीए के पास जाते हैं 6-7 महीने के बाद रिटर्न बनाने, दे गेट शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है. बट उसमें भी काफी चीजें हैं जो स्ट्रेटजीज है जिनकी वजह से अगर वो उस चीज से वैसे चलेंगे तो कहीं ना कहीं इनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. बट लीगली आई एम टेलिंग यू. Okay. So when I talk about this question, I will just add up a question. What are the legal ways to save tax now? There are certain legal ways, like there is a complete section 54 in income tax, जो ये चीजें गवर्न करता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जहां से हमारे टैक्सेस ऑल टुगेदर सेव हो जाएंगे. Okay. अगर हम फॉर एग्जांपल आज कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के मैं कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीद रहा हूँ, या कोई भी एसेट बेच के मैं कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो उस केस में कभी भी मेरा कैपिटल गेन्स नहीं लगता है. So as you said, there are some legal ways to save tax. Will there be a time constant? Because आपने बोला कि अगर आप एसेट कोई भेजेंगे फिर रियल एस्टेट में वापस इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए कोई टाइम फ्रेम है कि मैं कभी भी आज मैंने भेजा फिर 10 साल के बाद मैं रियल एस्टेट में करूंगा? नो, वैसी कोई भी सिचुएशन नहीं है. शॉर्टर टाइम पीरियड है 6 मंथ्स का, कि अगर आपने आज एसेट बेचा है और आप विद इन 6 मंथ्स आपके पास टाइम लिमिट होता है कि आप CGAS करके एक अकाउंट रहता है, खोलना होता है, तो उसमें आपको फंड्स पार्क करने होते हैं. Okay. और टिल द टाइम कि आप वो री इन्वेस्ट करो. हाँ. और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये होती है, अगर आप रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप विद इन 2 years, जब से आपने सेल किया है कोई एसेट, तो विद इन 2 years आपने वो रेजिडेंशियल दूसरा हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी होनी चाहिए, और either 1 year before selling and after 2 years. Understood. ठीक. So as we said, capital gains. So can you tell us what are the short-term capital gains and the long-term capital gains? Because when as a real estate broker, I usually use these terms to my clients. Short-term capital gain is basically if you are selling a asset जो आपने खरीदा था prior to within 24 months. Okay. और अगर 24 मंथ से ज्यादा आपने कोई एसेट अपने पास होल्ड किया, उसके बाद आपने वो बेचा है,
तो दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इसमें फिर रेट ऑफ टैक्सेशन की अलग अलग, दैट इज इन डिटेल, उसमें रेट ऑफ टैक्सेस आपके अलग हो जाता है, इंडेक्सेशन का ऑप्शन आपके पास आ जाता है. दैट समथिंग जो थोड़ा डिटेल में जाएगा. Okay, that's why I said to my clients that you need a CA into a real estate transaction, because it's not a common thing that you will calculate. It's the professional who takes care of those details and takes care of your money in a legal way. So when you are buying, selling, or anything, you need a CA. As I said in the last podcast, you need a lawyer for the legal things, and you need a CA to park your money or to help you to settle that money into different accounts or the way you want to diversify it. Now, as I say, my segment 5, I will just ask one question in that. My segment 5 will be all about Kashmir reality. So what is the reality check in terms of buying and selling in the market? So do you think the people which are investing in real estate right now, are they aligned with the incomes of the people of Kashmir? In most of the cases, they are not aligned. If I compare the average income of a person with the property they are supposed to buy, तो वो कहीं अलाइन नहीं हो रहे. दैट इज टोटली डिस्कनेक्टिंग. तो वो चीज़ें हमें काफ़ी ज़रूरत, बेसिकली एक सोशल प्रेशर जो मैंने पहले ही कहा वो है एक प्रॉपर्टी लेने के लिए. और कहीं ना कहीं वो उनको फिर अपना आप काफ़ी सिक्योर लगता है कि कल को अगर हमें घर बनाना हो तो हमारे पास ऑलरेडी लैंड है, या मैं ये लैंड तब बेच के कहीं नज़दीक में थोड़ी कम ज़मीन ले लूँ, उस पर घर बना सकूँ. तो वो है. बट कहीं ना कहीं यहाँ की इनकम और आपकी प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स की डिफरेंस रहती है. So I will just go with one more segment and I will ask you only one question out of it, because I think that will suffice the question. So it will be all about strategy. So when I say if a CA has a 1 crore, how will he invest? Like if I have 1 crores, I'll invest 40% of my money in SIPs, 30% in business, and 20% I'll keep in land, and 10% I'll keep in case of my emergency funds. Okay. So there is a classification of the income, right? So you have to keep the funds very diversified. Yes, आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि आप जरूरी नहीं आप सारे पैसे थोड़ी बिजनेस में ही डालोगे, या सारे पैसे आप SIPs में नहीं डालोगे. लाइकवाइज आप सारे पैसे लैंड में ही नहीं डालोगे. Understood. You need to allocate your funds. Wow. What if कल को आपका जो आपकी लैंड है वो एप्रिसिएट हुई ना, आपने 100% सारे फंड्स आपने उसी में डाले थे. So it's an old saying, don't put all the eggs in one basket. So I will start with the rapid fire, which I did with Designer Tahir Dar. That was one of the first podcasts. So I will ask you some questions and you have to answer one. Okay, so it will be very quick. So when I say land or rental, Rental, cash flow or appreciation, cash flow, buy now or wait, buy now, biggest myth, land never fails, underrated opportunity. SIPs. Wow. So with this, I think Zahab Saab, you have given us an idea that investing or money is never an emotional game. It's all about practicality. It's all about the vision. It's all about the goals that you are having, that you have set with that money. It can be an income or it can be a gift to you, which has come as a money to you. And then you can diversify into many things. So surely we will do a lot of series onto these type of topics. But I want you to close it on a one note with the people that you want to tell, whatever you say, whatever you want to say to the people who have watched you as a CA, what suggestions will you give? Just give them a 1 minute introduction or tell them why they need a CA in today's market. अक्सर लोग ये सोचते हैं कि CA सिर्फ टैक्स फाइलिंग के लिए होता है, लेकिन रियलिटी इज डिफरेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट समवन हु जस्ट फाइल्स योर रिटर्न्स, ही इज बेसिकली योर फाइनेंशियल स्ट्रेटजिस्ट. आपको कहीं भी कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या बिजनेस ग्रो करना हो, एक गलत डिसीजन आपको करोड़ों का नुकसान दे सकता है. एंड दैट्स वेयर द CAs कम इनटू पिक्चर. Because at the end of the day, it's not how much you earn, but how well you keep it and how much you grow it. Right. मेरी saying थी, मेरी मामा बोलती थी कि पैसा कमाना बहुत easy है, but पैसा खर्चाना बहुत difficult है. I think that's what is justice that you have given with your words. So I will close this particular podcast for the day, and we will be looking for the more such podcasts coming in future. And I will just close it with this particular thing, that in Kashmir, real estate is everywhere, but the real understanding is very rare. So let's see how we can develop this Kashmir's real estate podcast and try to give the people a knowledge about real estate, why we need a CA, why we need a law, why we need a lawyer,
what are the laws which we have to get into it, and we have to talk about the builders. We are talking with investors, and we will be getting more people onto these podcasts. Stay tuned with us. Thank you for joining with us. Assalamu alaikum.